Namaskar. Well, it is said that Goa is a place of an endless charm. Wherever comes to Goa, Goa leaves an imprint on the heart. Whatever comes to Goa, it shines with a warmth. As curtains come down on the 37th National Games, the games will be remembered as the biggest national games ever happened in its history. As the national games are the highest parameter for the sporting excellence in the country, the games at Goa will be remembered as the milestone for the future organization. Organizing these biggest national games is our biggest tribute to the motherland of Bharat. I am very happy that this call was received with utmost seriousness by our athletes. With the record-breaking inclusion disciplines and the footfalls of the athletes, Goa also has broken a class ceiling. Goa has completed its campaign in the games with the 27 gold, 27 silver and the 38 bronze medal, totaling to the 92 medals, making it the first ever performance in the national games, finishing to the 9th position of the medal tally. This is the Goa's woman that defines it as a serious supporting competitor in the Olympic sports. I bow down to the athletes who were present over here. And it is the indomitable spirit of our athletes and the contribution for their supporting staff. 37th National Games is not only the event management. हो एक दूरदृष्टिकोन जेणेकरून आमचे गोयचे मातलेतले खेळगडे आज परजळतले तांकां एक नवे व्यासपीठ मेळटले आणि त्याच अनुषंगान आज ज्या तरेन गोंयांत नेत्रदीपक अशी कामगिरी केल्ली आसा घडये बरेचशे गोंयांत रावन सुद्धा खाची कोरातले आमचे गोंयांतले वाड्यांचे नाव खबर नाशिल्ली पण आज आमचे खेळगडे आमचे गोंयचे लखलखते हिऱ्यांनी ते गांवचे नाव वयर काडिल्ले आसात आणि गोंया खातीर आपल्या कापस्तदीचेर मळाचेर आज तांणी नाव खेळामाचेर पळयतलेले आसा अशे सगळ्या म्हजे एथलीट्साक हांव मनापासून गोंय सरकाराच्या वतीन तांचे सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. नंदी सी चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है. आखिर उसके मन में रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना फिरता है. मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो तब तक चैन निंद तुम त्यागो. तुम संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो. तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. जय हिंद, जय गोवा. We are here today for the closing ceremony of the 37 National Games, an event that has truly been demonstration of the spirit of sportsmanship, unity and excellence. This grand celebration of sports held right here in the picturesque state of Goa has left an indelible mark in the annals of Indian sports history. This year's National Games have been truly exceptional in every sense. We witnessed a remarkable display of talent, dedication and passion with a record-breaking number of 43 sports being contested, surpassing the average of 36 in previous editions. This expansion of sporting disciplines not only demonstrates the growth and diversity of sports in our nation, but also offers our athletes an even broader stage to showcase their abilities. Behind the scenes, there is an unsung army of heroes who have worked tirelessly to ensure in making these games grand success. The GTCC and NGOC have worked diligently to make sure that every event runs smoothly, adhering to the highest standards of professionalism and fairness. Their dedication and meticulous planning have been instrumental in ensuring
that the games were a true spectacle for all to joy. I must also acknowledge the contribution of Sri Amitabh Sharma, Executive Council Member of Indian Olympic Association and the Chairman of the GTCC, who has been the guiding force behind the scenes. His commitment to the cause of sports has been truly commendable. Furthermore, we owe the debt of gratitude to the government of Goa, which has extended unparalleled support throughout the event. Their vision and commitment to promoting sports have been instrumental in making these games a reality, and their hospitality has made every participant feel at home in this beautiful stage. Our heartfelt appreciation goes to the State Olympic Association, National Sports Federations, coaches, and all the support staff who have worked tirelessly to prepare our athletes for this competition. Your dedication and hard work are the driving force behind the success of our sporting endeavors. Of course, we cannot forget the true stars of this event, the athletes. Your countless hours of training, your resilience in the face of adversity, and your unwavering determination have been nothing short of inspirational. You have made our nation proud with your performances, and you are the embodiment of the Olympic spirit. As we bid adieu to the 37 National Games in Goa, we eagerly anticipate the next chapter in this remarkable journey. I am delighted to announce that the 38th National Games will be hosted by the beautiful state of Uttarakhand. The finalized date for the exciting event will be announced soon, and we look forward to your continued support and participation. In closing, let us remember that the success of these games is a testament to what we can achieve when we come together as a nation, united by our love for sports. These games have exemplified the power of sports to unite, inspire, and push the boundaries of human potential. As we leave Goa, we carry with us the memories, the friendships, and the inspiration to strive for excellence in all our endeavors. Thank you, and see you at 38th National Games in Uttarakhand. Jai Hind! आज 37 नेशनल गेम का समापन हो रहा है। 20 अक्टूबर से शुरू हुई इस भारतीय खेल जगत के सबसे बड़े प्रतियोगिता का गोवा में आयोजन हुआ है। ये आज ही एक सपना सा लगता है। नेशनल गेम्स ये गोवा का सबसे खूबसूरत सपना था। आज बहुत खुशी हो रही है कि ये सपना आज पूरे होने जा रहा है। गोवा सरकार, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, खेल मंत्री श्री गोविंद गावड़े जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने अच्छी तरह से इस नेशनल गेम का सब कुछ अपने हाथ में लेके आज आखिर हम इसके समापन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। छोटे से गोवा में इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करना ये आसान बात नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पैसों की भी बहुत आवश्यकता थी। इससे बढ़कर आत्मविश्वास की, इच्छा शक्ति की जरूरत थी। और मैं कहना चाहता हूं कि गोवा सब कसौटी पर खरा उतरा है, कामयाब रहा है। इस सफल आयोजन के साथ गोवा ने नेशनल गेम्स के आयोजन का बेंचमार्क इतना बढ़ाया है कि आने वाले आयोजकों को निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बस बनी रहेगी। आयोजन के इस साथ मैदान में भी गोवा ने जो इतिहास रचा है वो केवल अविश्वसनीय है। 27 गोल्ड मेडल, इसके साथ कुल मिलाकर एक
91 मेडल्स भी जीत कर हम में भी दम है, ये गोवा के खिलाड़ियों ने साबित कर लिया है। इसके लिए मैं गोवा के सब स्टेट एसोसिएशंस और मेरे प्यारे खिलाड़ी मित्रों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने अन्य क्षेत्रों में साथ साथ खेल क्षेत्र में भी प्रगति की बड़ी छलांग लगाई है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, खेल जगत में देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा था कि देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं। आज देश के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान बढ़ा है, तो उन्हीं के कारण है, यह मैं कहना चाहता हूँ। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभारी हूँ। उन्होंने गेम से उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सबका हौसला बढ़ा लिया। हम कर सकते हैं इसका एहसास निश्चित तौर से दिलाया। उनका मार्गदर्शन सबके लिए प्रेरणादायी था। हमको कामयाब बनना है, इस विचार से सब प्रेरित हुए और आज हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन का सुखद परिणाम दिखने को मिल रहा है। 2036 में होने वाले ओलंपिक आयोजन की दावेदारी भारत ने की है। उस दिशा में हम सबको काम करना है, खेल का दर्जा और बढ़ाना है। निश्चित रूप से हमारी खेल के क्षेत्र में ताकत बढ़ी है। अब हमारा लक्ष्य है ओलंपिक्स मेडल है, ये हमारे खिलाड़ियों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर भी एक बार मैं सबको बधाई देता हूँ और मेरे विचार यहाँ ही समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। गोवा या आयोजन यशस्वी बनाने के कार्य में जुड़े सभी लोगों का प्रतिनिधि का मैं हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे क्रीड़ा मंत्री जिसका जोशपूर्ण भाषण अभी आप लोगों ने सुना, सही में श्री गोविंद गावड़े जी ने जो कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सही में हमने डरे नहीं, जुड़े रहे, जैसे कि जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे, इस ब्रीद वाक्य के साथ गोवा की पूरी टीम जो इस खेल के आयोजन में रही, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ द एसएजी, दोनों वुमन जिन लोगों ने आगे से लीड किया, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए दोनों खड़े रहे, दोनों को आगे से जो लीड कर रहे थे, श्वेतिका सज्जन एंड डॉक्टर गीता नागवेकर, इनका बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन कीजिए। इन दोनों को सपोर्ट जो मिला, हमारे पूरे कैबिनेट कलीग्स और सभी सेक्रेटरी, सभी आयोजन के सभी हमारे जीसीएस ऑफिसर, यानी जैसे बोलते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से लेके जो ग्राउंड्समैन तक, इन सभी लोगों ने उनको जो सपोर्ट किया, इन लिए मैं सभी इन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे बहुत अभिनंदन हो रहा है कि नेशनल गेम्स की टॉर्च जो तात्या कुएलो ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में दी थी, वही टॉर्च आज इस गोमंत भूमि से हम देवभूमि उत्तराखंड में दे रहे हैं। इसलिए मैं देवभूमि उत्तराखंड के भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस गोमंत भूमि से देवभूमि में इस टॉर्च जा रहे, और उत्तराखंड के मेरे दोस्त, मेरे मुख्यमंत्री यानी धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे भी बड़ा आयोजन आप लोगों का हो और यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होंगे। गोवा के सभी खिलाड़ियों को कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले खिलाड़ी के लिए 91 नहीं, इस बार हम 100 पार मेडल करेंगे आगे आने वाले गेम में। गोवा में 37th नेशनल गेम के आयोजन के एक स्थायी परिणाम देखने के लिए मिले और इसी मोर्चे पर ठोस प्रयास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए हम नियोजन कर रहे हैं। साल भर विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन करने का अत्याधुनिक स्टेडियम और खेल की सुविधाओं का हम उपयोग करेंगे। इस स्थान केवल नेशनल गेम्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल और नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हम इसके लिए करेंगे।
इस सुविधाओं का लोकल क्लब्स और एसोसिएशन जो हमेशा के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे मैंने कहा है कि हर एसोसिएशन के लिए एक प्लेग्राउंड, एक स्टेडियम डेजिग्नेट किया जाएगा। उससे पूरे स्टेट के एसोसिएशन वहां आके अपने बच्चों के लिए हमेशा के लिए उन्हें प्रोत्साहन खेलने के लिए मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली इस बार मैक्सिमम पार्टिसिपेशन गोवा का सभी खेलों में रहा। 43 डिसिप्लिन से अप्रॉक्सीमेटली 39 डिसिप्लिन में गोवा के बच्चों ने भाग लिया। इसलिए सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इससे आगे 39 ग्राउंड्स विल बी डेजिग्नेटेड फॉर द स्पेसिफिक गेम्स, खेलने के लिए हमेशा के लिए हम डेजिग्नेट करेंगे, इतना कहता हूं। और गोवा हमेशा के लिए टूरिज्म के लिए जाना जाता था, सन, सैंड और सी। इसके बाद और एक एस जोड़ा जाएगा, विच इज द स्पोर्ट्स, सन, सैंड, सी, और स्पोर्ट्स इससे जुड़ा गया है। लोग इसके बाद यानी स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए भी गोवा में आएंगे। इश्टानो म्हाका खूब खोस भोगता। पयले फावटी अशा तरेच्यो गेम ऑर्गनायज करता आसतना पुराय देशांतल्यान जवळपास 28 राज्यां आणि 8 युनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट जाले आणि हायेस्ट पार्टिसिपेशन आशिल्ले आमकां जवळपास 797 खेळगडे हरियाणांतल्यान आयले। त्या हरियाणाच्या टीमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। 761 खेळगडे महाराष्ट्रांतल्यान आयले। महाराष्ट्रांतले खेळा मंत्री हांगासर आसा, त्या खातीर फक्त पार्टिसिपेशन न्ही तर नंबर 1 चेर येवपी महाराष्ट्र हांचे परत एकदा हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आणि 568 खेळगडे हे दिल्लींतल्यान आयले, तांचेय हांव खूब खूब अभिनंदन करता। खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेशन जातलें। लोकांक खरें दिसनाशिल्लें की 10,000 खेळगडे गोंयांत येतले म्हणून, पण हो नंबर तांच्यांनी पार केलो, त्या खातीर तांचे खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन। गोंय राज्यांत सर्तीचे यजमानपद करता आसतना आमी म्हटलां की फुटबॉल, एथलेट्स, पॅचॅक, सिलेट, हॉकी, स्की मार्शल, खो खो, परत जिमनॅस्टीक, हँडबॉल, बास्केटबॉल, लगोरी, स्पेक, तक्राव, नेटबॉल, तायक्वांडो, आर्चरी, रोल बॉल, मॉडर्न, पेंथलट्स, फेन्सिंग अशा वेगवेगळ्या खेळांनी आमी गोल्ड मेडलां मेळयलीं। त्या खातीर जवळपास 27 गोल्ड, 27 सिल्वर आणि 37 ब्रॉन्झ मेडल मेळोवपी गोंयच्या खेळगड्यांचे परत एकदा नेटान ताळयो मारून अभिनंदन करात। पयलेच फावटी सगळे जाण विचारताले नॅशनल गेम आयोजन करून फायदो कितें काय म्हणून। नॅशनल गेम आयोजनाचो फायदो 91 मेडलां आमकां मेळ्ळी, हो आमचो फायदो आसा। आमकां नॅशनल गेम्स यशस्वी आयोजन जालें। फाटले 20-22 दीस म्हणजे 19 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत आमच्या पुराय सगळ्या स्पोर्ट्स स्टेडियमाचेर तिकीट कचाकच गर्दी आसताली। आमकां हाच्या फुडें म्हाका दिसता हांव आशा व्यक्त करता की आमचे अर्जून एवार्डी फुडें बसल्या। खेळा मळाचेर गोंय परत एकदा अर्जून एवार्डी आमच्या मदीं येवपाक जाय। आमचे गोंयचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर, इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनी अर्जून पुरस्कार विजेते जातले हातूंत म्हाका मात सुद्दां दुबाव ना। निश्चितच तुमच्या सगळ्या खातीर जो सपोर्ट जाय, तेंको जाय, सगळ्या दृश्टीन तो सरकार त्या खातीर सातत्यान प्रयत्न करत आसतले। आमी तुमकां सगळ्या जाणांक, सगळ्या खेळगड्यांक परत एकदा सांगता, भिवपाची गरज ना, आमी तुमच्या बरोबर आसा। सगळे मेळून जोडेंगे, जियेंगे, जीतेंगे। माझ्या बरोबर परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे आभार व्यक्त करात एक घोषणा देऊन। भारत माता की, सगळे जाण हात वयर करून भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वो एक बहुत बड़ा संकेत है। मैंने जितनी इनामें यहां दी हैं उनमें 2/3 महिला हैं।
हमने तो रिजर्वेशन 1/3 दिया था, स्पोर्ट्स में तो 2/3 इन्होंने ले लिया। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है और इसका चित्रण गोवा में हो रहा है। जब टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम अच्छे प्रयास कर आखिर में सफल नहीं हो पाई, तो देश के प्रधानमंत्री ने हर महिला खिलाड़ी से बात की और कहा, बेटियों आपने बहुत ज्यादा कर दिखाया है, अगली बार और सफलता मिलेगी। We have our fighter planes manufactured in the country, our fighter helicopters, and who are our pilots? Our girls, they are fighter pilots, they are in combat positions. भारत बदल रहा है और तभी तो हुआ कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है आज की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इंडियन इकोनॉमी इज अ शाइनिंग स्टार। आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी का है। आपने 15 दिन में ये कर दिखाया है, आसान नहीं है और सबसे बड़ा मार्केट एरिया भी है। लेट आवर स्पोर्ट्स पर्सन्स गेट फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड मूव अहेड। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने यहां नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ाए हैं, वो स्टैटिस्टिक्स है, पर क्वालिटी देखिए। योर फोकस ऑन लगोरी, गटका, ये कितना जबरदस्त कदम उठाया है। ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं। गांव-गांव में स्टेडियम आएंगे। मेरे गांव में भी शुरुआत हुई है। स्टेडियम में बच्चे जाएंगे, ट्रैक का उपयोग करेंगे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। They will be fighting fit. If India is fit, only then we can move ahead. It has everything which every sports person needs to learn. It will never retrace the step. It will always go forward, and this has been seen. I congratulate all the teams. I congratulate all the winners. But let me tell you, my young friends, every participant is a winner. मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। It's a defining moment for Goa. It's a proud moment for Goa. It's an accomplishment for the bureaucracy of Goa. It is a feather in the cap of the Chief Minister and his team for having organized it so well. And it's a challenge which Rekha ji has taken. Rekha ji and Dhami ji, they will get guidance from Dr. Chief Minister Samant and the Sports Minister. और ये गुरु मंत्र बताएंगे कि हमसे ज्यादा कैसे सफल हो। Once again, congratulations to all the winners. Congratulations to all the participants. Your great gain is that you participated. Thank you so much.